ایک کیڈر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایک کیڈر ہوتا ہے. اچھا بھائی ساری دنیا میں اگر جمہوری نظام ہے، خان صاحب جو ہے نا اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. چین کا ماڈل، ترکی کا ماڈل، اچھا جی ملائیشیا کا ماڈل، برطانیہ کا بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں. بھائی یہ ٹھیک ہے کہ پالیسیوں، یہ ایک نقطہ ان کا ٹھیک ہے، پالیسیوں کے تسلسل ہی سے نتیجہ ہوتا ہے، نکلتا ہے. شارٹ ٹرم پالیسیاں بناتے ہیں. مثلا زرداری صاحب نے ایک پالیسی بنائی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور اسیسمنٹ یہ تھی کہ اس سے 16,000 ہر کانسٹیچوئنسی میں قومی اسمبلی کی ووٹ مل جائیں گے. ٹھیک. اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کی، اور الیکشن جیتنے کے لیے اگلا وہ تیار تھے. مگر ہوا کیا، کرپشن کا پرسیپشن اتنا گہرا ہو گیا، اس حکومت میں مہنگائی کا ہو گیا. بھائی آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو زراعت میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے کہ زراعت کا پوٹینشیل کبھی ڈسکوری نہیں کیا گیا، اور اس میں جلدی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ عدالتوں سے بہت نالاں ہیں، پولیس اور عدالتوں سے، کہ عدالتیں تعداد ہی کم ہے. 1,000 جج کم ہے میجسٹریسی سے لے کے سپریم کورٹ تک. 20 تو لاہور ہائی کورٹ میں جج کم ہیں. 1,000 جج تو کتنے پیسے چاہیے اس کے لیے؟ 600 ارب روپے ریکور کر کے دیے 2 سال میں نیب نے، اور اینٹی کرپشن پنجاب نے، جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اس پہ کس دن پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو بھائی اس پہ اتنے پیسے تو نہیں خرچ ہوتے. آپ سول ججوں کی تعداد، صرف سول ججوں کی تعداد بڑھا دیں. 1 کروڑ کیسز ہیں. تو وہ تیزی سے جسٹس کھوسا نے کی تھی نا تیز رفتار عدالتیں، اس سلسلے میں کچھ کریں، کہیں تو لوگوں کو ریلیف ملے. اب پٹرول جو ہے وہ بڑھنے والا ہے، 12 روپے کی ریکمنڈیشن ہے 12 کی، لیکن میرا خیال ہے پر لیٹر کے حساب سے، جی میرا خیال ہے 12 تو نہیں بڑھائیں گے. حکومتیں کانشیس ہوتی ہے 5-6 روپے بڑھائیں گے. تو بھائی آپ کی پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے نا. آپ نے کہا جی 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب تو کئی 90 دن گزر گئے. اب معاملہ یہ کہ اس کی آپ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. اب انہیں یہ احساس ہے کہ 2.5 سال میں کچھ نہیں ہو سکا، تو 2.5 سال میں مزید بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بہت زیادہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ پہلے سے سچویشن بہتر ہے، نسبتاً ہموار ہے، طوفانی پانیوں میں نہیں سفر کر رہے اب. مطلب بے شک وہ بلیک کا پیسہ ہے اس میں، کنسٹرکشن میں، پراپرٹی کے بزنس میں، لیکن آیا تو ہے نا، اسے جابس تو پیدا ہو رہی ہیں نا، اور ٹیکسٹائل بہتر ہوا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ گیس بند کر رہے ہیں فیکٹریوں کو دینی، ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ بھائی دانا مشیر نہیں ہے. جہانگیر ترین تھا، اس کو چلتا کیا. مطلب جہانگیر ترین کوئی فرشتہ نہیں ہے، اب کے کاروباری آدمی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے، اگر ان میں سے کوئی شخص ڈیلیور کر سکتا تھا تو وہ کر سکتا تھا. اسی لیے تو ریکمنڈیشن بھی ان کے لیے آئی ہے کچھ ارکان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ کچھ ارکان کی، جیسے عالم نور خان صاحب ہیں، وہ تو بہت لوگ ہیں مطلب جو ان کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ڈیلیور کرنے والا. اس میں 2 خصوصیات ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ فرشتہ نہیں ہے. اس میں 2 خصوصیات ہیں. اس میں امیجنیشن بھی کمال کی ہے اور پریکٹیکل بھی وہ بہت ہے. یہ ریئر کمبینیشن ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت امیجنیٹو بھی ہو اور پریکٹیکل بھی ہو. صحیح. تو اینی ہو وہ 5 سال تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر کی انہوں کی. تو 5 سال ہی ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملے. دنیا میں تو 4 سال بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ آئینی مدت 5 سال کی. اور پارٹی اپنی کی تنظیم نہیں کی ہے. آپ اپنی پارٹی کی تنظیم کر لیتے ہیں نا، اسے اس قابل بناتے ہیں، اس میں دھڑے بندی نہ ہوتی، امیدواروں کا اچھا انتخاب ہوتا، اس کا سسٹم ہوتا. کئی دفعہ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ قائد اعظم کس طرح امیدواروں کا انتخاب. قائد اعظم چندہ دینے والوں کو ٹکٹ نہیں دیتے تھے. پارلیمانی بورڈ ان لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا جو الیکشن نہ لڑ رہے ہوں موسٹلی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ مثلا سرحد اس وقت تھا، اب تو پختونخوا نام ہے، وہاں الیکشن ہونے ہیں تو منسلک صوبے کا صدر جائے گا اور وہ جا کے الیکشن کرائے گا. نواب افتخار ممدوٹ کو بھیجا قائد اعظم نے، تو پیر صاحب مانکی شریف کی قیادت میں ایک وفد آیا اور قائد اعظم سے کہا کہ وہ تو بہت ہی شریف آدمی ہیں اور وہاں لوگ زورآور ہیں، تو وہ تو شاید الیکشن نہ کرا سکے. تو قائد اعظم نے کہا کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہے، مسلم لیگ کے دستور میں کیا لکھا ہے. تو اس میں دستور میں پھر تبدیلی کر رہتے ہیں، اگلی دفعہ میں کسی گنڈے کو بھیج دوں گا. شریف آدمی اگر آپ کو سازگار نہیں ہے، پارٹی کی تنظیم کریں، امیدواروں کے انتخاب کا طریقہ ٹھیک کریں،
कहीं किसी फील्ड में किसी एक जगह पे तो कोई रिलीफ लोगों को मिल रहा हो। पख्तूनख्वा में रिलीफ मिला था तो सीटें ज्यादा जीती ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन हारून साहब बड़े अच्छे काम है जो 2/3 से सिर्फ एक सीट कम थी, जैसे कि कब्जा माफिया से सरकारी जमीनों को वागजार तो कराने अच्छा का किया असेंबली में फिर शोर किस किया, बात का मगर था? ये है ना एहतसाब का मामला तो वही है, हम दोहराते हुए थक चुके हैं। ये ठीक है कि अपने बाद लोगों का एहतसाब भी किया, जफर मिर्जा साहब को हटाया, आमिर कियानी को हटाया, मगर बीआरटी पे तो कुछ नहीं किया, खुसरो बख्तियार का तो कुछ नहीं किया ना। वैसे बीआरटी से मुझे याद आया, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। परवेज खटक साहब कहते हैं उन्होंने बाकायदा टीवी पे ये बात की, अगर किसी को करप्शन नजर आई या मैंने हराम के पैसे कमाए तो मुझे गोली मार दें या मैं गोली गोली क्या मारनी, उसकी सही तहकीकात करें, गोली मारने का क्या सवाल है। अच्छा, लेकिन ये जो कब्जा माफिया के हवाले से इमरान खान साहब बड़ा अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं। असेंबली में खोखर बरादरान ने बड़ा शोर बरपा काम कर रहे हैं। एक वाकया लाहौर में बड़ा ठीक है, अच्छा ठीक ही है, तो एक वाकये से जुज़्व से कुल नहीं बनता, जुज़्व पे कुल को अप्लाई नहीं किया। जैसे कराची में कब्जा ग्रुप, हर जगह कब्जा ग्रुप है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा कब्जा ग्रुप काबुल में है। लेकिन हारून साहब आगाज तो किया, ये हम आगाज किया, बस आगाज किया है ना भाई। वो पुलिस इस काबिल ही नहीं है, पुलिस वाले तो खुद प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। अभी तो पहले हमने ये बात पॉइंट आउट करनी शुरू की थी, अब आपने देखा कितने व्लॉग इस पे हो रहे हैं और कैसी कैसी तकरीरें हो रही हैं। ये किसी के जहन में ही नहीं था हमने दिया, पुलिस वाले प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन तरजीहात में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तरजीह में हारून साहब तालीम भी इन्होंने शामिल किया, ज़रा तालीम की तरफ जाते हैं, ये इनकी तरजीहात में नज़र आ रही है, मगर ऐसा महसूस होता है इसका क़याम मुमकिन नहीं हो पाएगा हारून साहब। नहीं, देखिए ना, तालीम जो है वो 4 चीज़ें थी इसके मंशूर में। नंबर 1 तो ये था कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे वो सब बच्चे स्कूलों में जाएंगे। अब कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूलों में? यूनेस्को की रिपोर्ट है 2,50,00,000 बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और 2,35,00,000 नहीं जा रहे, बराबर तकरीबन। अच्छा, इसमें तो कोई कामयाबी नहीं हुई। ठीक है, कोरोना आ गया, मईशत की हालत ख़राब थी वगैरह वगैरह। दूसरी तरजीह ये थी कि तालीम का मेयार बुलंद किया जाएगा। कहाँ मेयार बुलंद हुआ है जी? कोई मेयार पे फर्क नहीं पड़ा। तीसरा था असातिज़ा की तरबियत का। एवरेज एक उस्ताद की 3 दिन की तरबियत होती है, 3 दिन। उससे क्या हासिल है? नहीं, वो तो गर्मियों की पूरी छुट्टियों में देख, एक कौम जो है वो तो तालीमी इमरजेंसी कहते थे नाफज करेंगे, वो किधर गई तालीमी इमरजेंसी? वो बस देखे ना, मकान बनाना तो चलो कोरोना आ गया और 50 लाख मकान नहीं बन सकते, वैसे बन सकते हैं, अब भी बन सकते हैं, मैं पूरे वसूख से कहता बन सकते हैं। वो तो कोई लोग ही नहीं है उनके पास, वो तो लोग तलाश करें। और वो तो अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे देखने के लिए जाना था, मैं जा नहीं सका। वो अपना 25-30 लाख रुपए में एक हफ्ते में मकान बन जाता है, अच्छा खासा 3-4 बेडरूम का एक हफ्ते में। तो वो दुनिया में सरमाया भी मौजूद है, वो और लेबर भी ऑलरेडी है हमारे पास। किराए से ज़रा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और देखो भाई, ये कंस्ट्रक्शन के अंदाज थोड़ी चल सकता है। एनी हो, असातिज़ा की तरबियत पे थे। असातिज़ा की तरबियत का कोई नहीं। फिर ये यकसा निसाब तालीम, ठीक है। अब यकसा निसाब तालीम जो किया है ना, वज़ीर तालीम बनाया शफकत महमूद साहब को, उनका ये शोबा ही नहीं है। ये नहीं है कि शफकत महमूद साहब किसी काम के नहीं, मगर ये शोबा हर आदमी का एक काम होता है। अब उसमें क्या पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं? 40 अहादीस याद करें तो मेरा ख्याल ठीक है, 40 अहादीस याद करें, ठीक है। 40 अहादीस बड़ी जल्दी याद होती है, कोई इतना फलो है, इतनी खूबसूरती है, और क्या एक हफ्ते में एक हदीस याद करनी है ना, तो मुश्किल नहीं है। बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद किए, जब याद करना शुरू की तो याद होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसमें हाँ, टेक्निकल तालीम, सॉरी, असातिज़ा की तरबियत का नहीं था, टेक्निकल तालीम। आज डॉक्टर अताउर रहमान ने एक आर्टिकल लिखा है जिसको पढ़ के बड़ी खुशी हुई कि 2 यूनिवर्सिटियाँ बन रही उनके रसूख से, इसलिए कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी प्राइज़ मिला है, चीन में भी, कहाँ कई मुल्कों ने उन्हें, क्योंकि वो एक गैर मामूली आदमी है, तो उनकी तवज्जो से पख्तूनख्वा में और एक पंजाब में संबड़ियाल में, और उधर कौन सी जगह, हरीपुर के करीब कोई जगह है, वहाँ बन रही हैं यूनिवर्सिटियाँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ। लेकिन हायर एजुकेशन की भी अहमियत है, लेकिन महातिर मोहम्मद ने कहा था हमने असेंबलिंग से शुरू किया था काम आईटी का, वो आईटी पे कोई तवज्जो ही नहीं है। आईटी अगेन एग्रीकल्चर की तरह बहुत जल्द नताइज दे सकती है, 6-6 महीने के कोर्सेज हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इस पे काम हो रहा है। अच्छा, अब जो है यकसा निसाब तालीम का उन्होंने कह दिया, अब ये 1 फरवरी से तालीमी इदारे खुल रहे हैं, उन्होंने कह दिया शफकत महमूद साहब ने 1ली से 5वीं तक
यकसा निसाब तालीम, अब उसकी आप इम्प्लीकेशन देखें। वो पब्लिशर जो आगे रो पड़े कि हम तो पहले ही तबाह हुए पड़े, हर एक को नुकसान हुआ है कोरोना में, उनका भी नुकसान हुआ है। बहुत से स्कूल तो तनख्वाहें नहीं दे सके। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी हम तो तबाह हो जाएंगे, करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है, करोड़ों का नुकसान, करोड़ों रुपए की किताबें छाप के रखी हुई हैं। एक एक पब्लिशर ने बात कंपनसेट नहीं करेगी कुछ? कहाँ से कंपनसेट करेगी? हुकूमत के पास देने के लिए है क्या? नंगी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या? यानी उन्होंने कहा सबका नुकसान हुआ है। ये शफकत महमूद साहब का मिजाज है। मजा आ रहा है जो उन्हें किसी की तकलीफ की या किसी की परवाह हो, कोई भी मामला हो, वो एक ब्यूरोक्रेटिक उनका स्टाइल है कि सबका नुकसान हुआ है आपका। भाई अगर वो कहते हैं हमारे तो दफ्तर तक बिक जाएंगे तो फिर तो इसको ग्रेजुअली करना चाहिए ना। इतने एक बड़े क्राइसिस में देखिए ना, एक उन्होंने कहा क्या कितने असातिज़ा चाहिए होंगे, कारी चाहिए होंगे कुरान मजीद पढ़ाने के लिए। हर स्कूल में एक कितने स्कूल है? 2,60,000 है या 3,60,000 है? ये चाहिए होंगे ना, एक कारी चाहिए होगा ना। इस्लामियात का निसाब बढ़ा दिया है, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके लिए इस्लामियात के असातिज़ा तो चाहिए होंगे। हालत तो यह है कि इस्लामाबाद शहर में, ज़िला इस्लामाबाद में 35% असातिज़ा कम है, जैसे जज कम है इसी तरह असातिज़ा कम है। मतलब एक उस्ताद के 3,60,000 तो उस्ताद कारी चाहिए, ठीक है, और इस्लामियात के असातिज़ा चाहिए। फिर ये कहा 35,000 मदरसे जिसमें 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं कि इनमें रियाजी और माशरती उलूम और मैथ और साइंस के असातिज़ा जो है वो हुकूमत फराहम करेगी। अब ये शफकत महमूद साहब को पता ही नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो शुरू हुआ था तब्दीली का अमल, जिसमें उन्होंने जबर से नहीं काम लिया, इतना उनको कायल करने की कोशिश की, तो बहुत से मदारस में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं निसाब की। इस्लामाबाद में एक मदरसा है जहाँ मेरा जाना रहता था, अब तो मैं अरसे से नहीं जा सका। 20 इस्लामाबाद सेकेंडरी बोर्ड की 20 टॉप पोजीशनों में से 10 से 12 तक उसके लड़के जीत में से थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीत लेते थे, इसलिए कि वो मेहनत करते थे। भाई आप सोच समझ के फैसला करें ना। अच्छा, उनको असातिज़ा अगर ये फराहम करेंगे तो ये कुल 5 से 6 लाख असातिज़ा, इनकी तनख्वाह जरा कैलकुलेटर निकालें, सिफर ख़त्म हो जाएंगे। ये कहाँ से मुहैया करेंगे? ये प्रैक्टिकली एक पब्लिशर जो है, अच्छा जी पब्लिशर जो है उनसे हासिल और सुने, पब्लिशर जो है वो एक निसाब की मंजूरी लेगा ना नई किताब की, उसकी 1.5 लाख रुपए फीस देगा। यही क्या काम है भाई? और अगर प्राइमरी की 5 जमातें हर उसकी अगर हों और 30 किताबें अगर छापनी, मेरे ख्याल में 40 छापनी पड़ेंगी, बहरहाल मेरे पास डाटा नहीं है, ठीक है। अगर 40 किताबें छापनी तो 60 लाख रुपए फीस देगा। वो कहाँ से देगा 60 लाख रुपए? सही नहीं है उसके पास बेशतर पब्लिक। फिर क्या होगा? टैक्स बोर्ड की मोनोपोली होगी और उसका बड़ा ही मेयार ख़राब है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो इवेल्यूएट भी नहीं कर सकते।